दीपिका, मुस्कान चौधरी, निशा बागड़ी, गायत्री मीणा। ध्यान दो। और को आज एस्परजिलस करेंगे, न्यू फंगस। जब तक एक पीडीएफ भेज देती हूँ मैं आपको, एस्परजिलस की नहीं भेजी थी शायद, तो एस्परजिलस की पीडीएफ मैं हिंदी में तो अभी भेज देती हूँ। हाँ, प्रीति दादीच आ गई। प्रीति दादीच को एडमिट करते हैं। रवीना चौधरी, रवीना चौधरी, कामाक्षी, विजय लक्ष्मी, दीपन। कौन कौन आ गया? प्रीति आ गई, प्रीति दादी, दीपिका, मुस्कान चौधरी, निशा बागड़ी, गायत्री मीणा, रवीना चौधरी, विजय लक्ष्मी। कृष्णा भगत भी आई है अभी। कृष्णा भगत, कोमल चौधरी, कृष्णा भगत, रोशन चौधरी आई है अभी। रोशन चौधरी, मनीषा रेगर, मनीषा रेगर,
तो अपन कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? वी आर स्टार्टिंग विद द जीनस एस्परजिलस. तो what is the systematic position of the genus Aspergillus? The systematic position of the genus Aspergillus is it belongs to the division Eumycota, and the subdivision is Ascomycotina, and Aspergillus has been placed in the class Plectomycetes, and order is Eurocheales, and the family in which the Aspergillus fungus has been placed is Eurocheaceae, and the genus is Aspergillus or Eurotium. Genus is Aspergillus or Eurotium. So first of all, I will talk about the order Eurocheales, in which the Aspergillus has been placed. So what are the characteristic features of the order Eurocheales? Means the members are mainly saprophic, but may also occur as parasite on plants and animals, and they are found in soil and cause decay of substances with organic material, for example wood, dung, clothes, wings, horn, etc. So majority of the members of the order Eurocheales are homothallic and some are heterothallic. Ascocarp is minute, spherical, and closed. Clistothecium is present in the order Eurocheales. Paraphyses are absent in the ascocarp, and the asci are elliptical, thin-walled, deliquescent, and without opening, and there are 8 ascospores in each ascus. So in the order Eurocheales, ascospores are unicellular with various ornamentations and without germ, pore, or slit. Ascocarps burst open due to the internal pressure and or degeneration. Ascocarps burst open because of the internal pressure. So the order Eurocheales has been divided into 9 families. Of these, Eurocheaceae has been described. So what are the distinguishing features of the family Eurocheaceae? The ascocarp is mostly Clistothecium in the family Eurocheaceae, and the conidia are formed on spatial cells called phyalides, and the ascospores are hyaline or creamish yellow in Eurocheaceae family, to which the genus Aspergillus belongs. So now I talk about, I share a slide with you all. एक स्लाइड में शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ. ठीक है, एस्परजिलस की स्लाइड है, इसको देखना. सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? एस्परजिलस नामक कवक की. तो एस्परजिलस नामक कवक की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो है एस्परजिलस कवक प्रभाग डिवीजन यूमाइकोटा में सम्मिलित किया गया है, और उप प्रभाग सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना में रखा गया है. और क्लास है, वर्ग है प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर है यूरोशियल्स, और फैमिली है यूरोशिएसी, और जीनस है यूरोशियम और एस्परजिलस. मतलब एस्परजिलस की वर्गीकृत स्थिति क्या है? एस्परजिलस को प्रभाग यूमाइकोटा में रखा गया है, और उप प्रभाग है एस्कोमाइकोटिना. क्लास है, वर्ग है प्लेक्टोमाइसिटीज, और गण है यूरोशियल्स, और फैमिली क्या है? यूरोशिएसी है. और किस वंश की अपन बात कर रहे हैं? वंश है एस्परजिलस. अब अपन पढ़ते हैं एस्परजिलस कवक का प्राप्ति स्थान कौन सा है? What is the occurrence of Aspergillus? तो एस्परजिलस एक मृतोपजीवी कवक है. एस्परजिलस एक सेप्रोफिटिक फंगस है. इसकी 100 से अधिक जातियां ज्ञात हैं, जिनमें 33 जातियां भारतवर्ष में पाई जाती हैं. एस्परजिलस को नील ओर्निका, ब्लू मोल्ड अथवा हरी ओर्निका, ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं. तो एस्परजिलस इज ए
saprophytic fungus. Aspergillus is a saprophytic fungus. Near about more than 100 species of Aspergillus are known, and out of the 100 species, 33 species of Aspergillus are found in India. And Aspergillus is called as blue mold, or Aspergillus is also known as green mold. तो Aspergillus को नील उड़ने का ब्लू मोल्ड अथवा हरी उड़ने का भी कहते हैं, ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। तो एस्परजिलस की अधिकतर जातियां सड़े हुए फल, सड़ी लकड़ी, गोबर, गीले चमड़े, कागज तथा अचार, मुरब्बे आदि पर पाई जाती हैं। तो एस्परजिलस की जातियां अचार व मुरब्बे पे भी पाई जाती हैं। एस्परजिलस की कुछ जातियां जैसे एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस आदि जंतुओं व मनुष्यों में परजीवी के रूप में मिलती हैं तथा माइकोसिस व एस्परजिलोसिस नामक रोग फैलाती हैं। तो जो एस्परजिलस की कुछ जातियां हैं बेटा, उनका नाम याद करना है आपको, एस्परजिलस नाइगर व एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अब ये दोनों फंजाई, एस्परजिलस नाइगर जंतुओं और एस्परजिलस फ्यूमिगेटस मनुष्यों में परजीवी के रूप में मिलती है। और कौन सा रोग फैलाती है, कौन सा डिजीज फैलाती है? माइकोसिस एंड एस्परजिलोसिस। मतलब Aspergillus niger and Aspergillus fumigatus are found as parasites in the human beings and in the organisms, and the species of Aspergillus like Aspergillus niger and Aspergillus fumigatus, they spread mycosis and aspergillosis disease। ठीक है, तो एस्परजिलस फ्लेवस जो अनेक खाद्य पदार्थों को संदूषित करता है, विषैले पदार्थ एफ्लाटॉक्सिन्स का निर्माण करता है। तो एस्परजिलस की अनेक जातियां औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि बेटा एस्परजिलस ओराइजी अल्कोहल निर्माण में, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक व अन्य कार्बनिक अम्ल निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ जातियां एंजाइम उत्पादन व प्रतिजैविक निर्माण में भी प्रयुक्त होती हैं। और अब मैं बात कर रही हूँ एस्परजिलस कवक का थैलस कैसा होता है। तो कवक जाल माइसीलियम सुविकसित पतले धागों से जाल के रूप में पोषक माध्यम की सतह पर फैला रहता है, और कुछ कवक तंतु हाइफी पोषक माध्यम में गहराई में प्रवेश करते हैं, जो कवक जाल के लिए पोषण अवशोषण करते हैं। तो कवक तंतु पतले, श्वेत अथवा हल्के पीले रंग के, अत्यधिक शाखित व पटयुक्त होते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? एस्परजिलस में थैलस कैसा पाया जाता है? तो ये देखना, ऊपर वाली संरचना है एस्परजिलस कवक में कवक तंतु की संरचना दिखाई है। ये किसकी संरचना है? कवक तंतु की संरचना है, हाइफी की संरचना है। तो क्या बताया? द हाइफी इन एस्परजिलस फंगस, these are thin and these are white and these are branched. Hyphae are branched and the hyphae are septate. देख रहे हो, hyphae are septate and each cell of the hyphae is multinucleate। तो एस्परजिलस नामक कवक में जो कवक तंतु हैं, पतले, श्वेत अथवा हल्के पीले रंग के, अत्यधिक शाखित व पटयुक्त होते हैं, सेप्टेट होते हैं। तो ये था एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम कौन सा चैप्टर है? बेटा दिस इज चैप्टर 17 इन माय बुक एंड आपकी बुक में देख लो आप। एस्परजिलस इज अ फंगस। ठीक है, एस्परजिलस
हाँ, हिंदी मीडियम से बोल रहे हो क्या? हिंदी मीडियम की? इंग्लिश मीडियम से बोल रही हूँ मैम मैं। इंग्लिश मीडियम में तो देख लो बेटा, कौन सी बुक है आपके पास? आपके पास क्या नाम है आपका? पहले तो नाम बताओ। हाँ, नाम बताओ बेटा। टेल मी योर नेम। नेम बताओ बेटा। मैम आपका नाम बताओ जो बोल रहे हो इंग्लिश मीडियम से, और जिससे पेज नंबर पूछा है। मैम मीनाक्षी हूँ मैं। मीनाक्षी रहो तो मीनाक्षी बेटा, आपके पास कौन सी बुक है मीनाक्षी? मैम सीबीएच की है मेरे पास। तो हाँ, सीबीएच में 18 चैप्टर है। चैप्टर 18 खोल के देखो मीनाक्षी। आपकी बुक में ओके डिफरेंट भी हो मैम। सकता है। एक बार खोलो मीनाक्षी, चैप्टर 18 खोलो, उस पर एस्परजिलस दिख रहा है? देखो बेटा, खोल के एक बार देखो, फिर करते हैं आपको ओके मैम। इंग्लिश में ही बताते हैं। जब मिल जाए मीनाक्षी तो मुझे बोलना, है ना? एस्परजिलस है मीनाक्षी, एस्परजिलस है अपना, यूनिट 3 में है। आपकी सीबीएच की बुक में यूनिट 3, उसमें एस्परजिलस है। ये देखो, चैप्टर 18 है मेरी बुक में। मिल गया मैम। मिल गया? ठीक है बेटा। अब मैं इंग्लिश में ही पहले स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मिल गया ना मीनाक्षी? ओके बेटा, फाइन। यस मैम। देखना बेटा मीनाक्षी और सभी लोग जिसके पास इंग्लिश की बुक है एस्परजिलस, ठीक है, ये वाली मैं आपके साथ बोल रही हूँ बेटा। इन एस्परजिलस वी आर टॉकिंग अबाउट द हैबिटेट। तो मीनाक्षी आपको मिल ही गया होगा, और भी देख लो। एस्परजिलस की हैबिटेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एस्परजिलस इज ए cosmopolitan fungus and it has about 200 species. So according to Saxena, 44 of them are known in India, and the majority of them are saprophytic. Majority of them are saprophytic, ठीक है, which grow on dead organic material like dung, wood, shoes, suitcases, bread, butter, jam, syrups, paper clothes, soil and various other substances. तो मैं क्या बता रही हूँ? as the fungus Aspergillus is cosmopolitan fungus. It is found in all the parts of the world, and the fungus Aspergillus is सेप्रोफिटिक। हाँ बेटा, गैलेक्सी कुछ कहना चाह रहे हो? गैलेक्सी का नाम क्या है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेप्रोफिटिक। एंड सेप्रोफिटिक से क्या मतलब है? द फंगस एस्परजिलस व्हिच इज सेप्रोफिटिक, इट ग्रोज ऑन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक dung, shoes, suitcases and bread. And examples are Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus candidus, and Aspergillus glaucus. So Aspergillus niger या Aspergillus niger causes root rot in fig, pomegranate and dates. And Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus and Aspergillus niger cause aspergillosis in humans and animals. तो बेटा एस्परजिलस नामक जो कवक है, फंगस है, वो कौन सी बीमारी फैलाती है? एस्परजिलस नाइगर व एस्परजिलस फ्लेवस, दे स्प्रेड aspergillosis disease in humans and animals. वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आ रही है? अब आ रही है वॉइस क्लियर? अब आ रही है वॉइस क्लियर? ये देखो, अब आ रही है वॉइस क्लियर या नहीं है? यस मैम। अच्छा बेटा, यस मैम। तो अभी क्या किसकी बात कर रहे थे? एस्परजिलस। तो एस्परजिलस नाइगर, इट कॉजेज aspergillosis disease in humans and animals, and Aspergillus flavus produce aflatoxins in food products which are carcinogenic, causing cancer. एक जाति है, कौन सी स्पीसीज है? Aspergillus flavus. तो it produces aflatoxins and which are carcinogenic, मतलब they cause cancer. ठीक है, नाउ आई शो द आई टॉक अबाउट द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन द एस्परजिलस। ठीक है, तो एक स्लाइड फिर से मैं शेयर करती हूँ, ठीक है, आप लोगों को एस्परजिलस वॉइस नहीं आए तो बोलना, ठीक है। दिस इज द स्लाइड,
ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन एस्परजिलस। तो थैलस ऑफ एस्परजिलस is well developed mycelium which shows dense growth on the surface of the medium or spreads deeper into the substrata. So hyphae are hyaline, slightly yellowish or colored, and hyphae are hyaline. Hyaline से मतलब है colorless. Hyphae of Aspergillus are hyaline, slightly yellowish or colored, and the hyphae are tubular, highly branched and septate. ये देखो एक फिगर है, ये फिगर तो थोड़ा डल है लेकिन पहले भी, this is the hyphae. तो hyphae कैसा है? Of Aspergillus it is branched and it is septate. ये देख लो, it is septate and it is tubular in shape. Hyphae is tubular in shape. ठीक है, तो each septum is perforated. Each septum is perforated, having a simple pore through which cytoplasm can move cell to cell. So the cells are thin-walled. कोशिकाएं कैसी है? These are thin-walled, multinucleate with granular cytoplasm and oil droplets. So the color of the colony of Aspergillus is generally characteristic of the species and depends upon conidiophore and conidial pigmentation. The colony color is generally blue-green, brown, yellow, black और yellow green. ठीक है, तो ये तो हो गई एस्परजिलस की बात इन इंग्लिश. अब मैं एक स्लाइड इंग्लिश में सभी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी शेयर करती हूँ. इस स्लाइड को और देखना बेटा, ये भी अच्छी स्लाइड है एस्परजिलस इंग्लिश में. ये तो विश, हाँ देखो बेटा, we are talking about the habit and habitat of the Aspergillus. So this is the vegetative structure, मतलब it shows the hyphae of the Aspergillus fungus. ठीक है, तो इस पे आपको दिखाया है, मतलब मैंने बताया the hypha is tubular, it is branched, and the hypha of Aspergillus are septate, and there are in each cell is multinucleate. जैसे डायग्राम में देख रहे हो, each cell is multinucleate in structure. तो अपन कहते हैं what is the vegetative structure of Aspergillus? The plant body is mycelial. इसमें Aspergillus में mycelium पाया जाता है, and the mycelium consists of slender, tubular, pale colored, branched, thin-walled hyphae. Some hyphae ramify superficially upon the substratum, while some penetrate into the substratum to absorb the food material. अब मेरा कहने का मतलब है, इस डायग्राम को देखना, each cell is multinucleate. प्रत्येक सेल कैसी है? बहु केंद्र की है. ये देख रहे हो, each cell is multinucleate and is filled with granular cytoplasm, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes and vacuoles. हाँ, प्रत्येक सेल कैसी है बेटा? इसमें देख रहे हो, बहु केंद्र की है और मल्टीन्यूक्लिएट है. हाँ, मल्टीन्यूक्लिएट है, और प्रत्येक कोशिका में क्या मिलता है? ग्रेन्युलर कोशिका द्रव्य मिलता है. Each cell has a granular cytoplasm, और प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, राइबोसोम्स एंड वैक्यूल्स से मिलते हैं. तो each cell is multinucleate and each cell is filled with granular cytoplasm, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes and vacuoles. The cross walls between the cells have a simple pore through which the cytoplasm of the adjacent cells remain continuous, and the reserved food material is in the form of oil globules. ये देख लो, जो संचित खाद्य पदार्थ है, मैं एरो घुमा रही हूँ, जो संचित खाद्य पदार्थ है वो ऑयल ग्लोब्यूल्स के रूप में एस्परजिलस की कोशिकाओं में
पाया जाता है। तो द रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ oil globules in the Aspergillus. So Aspergillus is sometimes called as black mold. इसको अपन black mold भी कहते हैं. It is called as black mold. And the species of Aspergillus, they grow as contaminant in the laboratory cultures as the spores, conidia are present in the air. So Aspergillus can be easily grown by keeping a piece of cheese or bread in warm moist chamber. तो बेटा एस्परजिलस का अगर अपन को कल्चर करना है तो एक वार्म मॉइस्ट चैम्बर में, नमी वाले चैम्बर में एक ब्रेड का पीस रख दो, है ना, जो ब्रेड अपन यूज करते हैं डेली वेयर में सैंडविच के रूप में कैसे भी, तो ब्रेड पीस को और या चीज के पीस को अपन एक चैम्बर में रख देते हैं जिसमें कि मॉइस्ट होती है, तो उसमें एस्परजिलस फंगस इजीली ग्रो कर सकती है. तो एस्परजिलस कैन बी ग्रोन इजीली by keeping a piece of cheese or bread in warm moist chamber, and it appears in the form of greenish smoky patches along with buccal rhizopus and penicillium. तो अपन अब देख रहे हैं हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एस्परजिलस तो पढ़ी लिया अपन ने, ये भी देख लिया. अब इसमें नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एस्परजिलस. तो एस्परजिलस हैज ए filamentous structure. It consists of the following components in its cell structure that include, बेटा ये है morphology of aspergillus. तो इसका मेरा मतलब यही है, ये रिप्रोडक्शन में काम आएगा, लेकिन ये देख रहे हो आप, ये स्पष्ट क्लियर डायग्राम है. दिस इज द फुट सेल, पाद कोशिका है. इस फुट सेल से, फ्रॉम द फुट सेल कम्स आउट द कोनिडियोफोर. तो कोनिडियोफोर फुट सेल से निकल रहा है एंड कोनिडियोफोर किस पे स्वलन हो जाता है, एक वेसिकल में, पुटिका में स्वलन हो जाता है. और इस वेसिकल के ऊपर क्या लगते हैं बेटा, कुछ फिंगर लाइक संरचनाएं डेवलप होती है जिन्हें अपन फ्यालाइड और स्टेरिगमेटा कहते हैं. ये देखो जो येलो कलर की है, दीज आर कॉल्ड एज फ्यालाइड और स्टेरिगमेटा, और जो ब्लू कलर की है वो भी सेकेंडरी स्टेरिगमेटा है. जो येलो कलर की है वो है प्राइमरी स्टेरिगमेटा, और जो ब्लू कलर की दिखाई है डायग्राम में वो है सेकेंडरी स्टेरिगमेटा. एंड ऑन द सेकेंडरी स्टेरिगमेटा चेन्स ऑफ कोनिडिया दे डेवलप. अब हिंदी मीडियम वालों के लिए एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, ठीक है. अपन किसकी बात कर रहे थे, थैलस की. तो एस्परजिलस के जो कवक तंतु हैं पतले होते हैं, श्वेत होते हैं, हल्के पीले रंग के, अत्यधिक शाखित व पटयुक्त होते हैं. तो प्रत्येक पट में एक सरल छिद्र सिंपल पोर उपस्थित होता है, ठीक है. और जैसा कि बताया था बेटा, कोशिकाएं बहुकेंद्रकी होती हैं. कैसी होती हैं, जो सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट. तो कोशिकाएं बहुकेंद्रकी होती है और कवक तंतु कोशिकाओं में सभी केंद्रक एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात समकेंद्रकीय होमोकैरियोटिक होते हैं. तो होमोकैरियोटिक किसे कहेंगे बेटा, समकेंद्रकीय, की कवक तंतु की सेल्स में, कोशिकाओं में जब सभी केंद्रक, जब सभी न्यूक्लियाई एक ही प्रकार के होते हैं तो इसे अपन समकेंद्रकीय होमोकैरियोटिक कहते हैं. कभी कभी दो भिन्न प्रभेद के कवक तंतुओं के संयोजन मतलब एनास्टोमोसिस से एक कोशिका में दो भिन्न प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं. तो याद क्या करोगे बेटा, जब एक कोशिका में, जब कवक तंतु की एक ही कोशिका में दो भिन्न प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, तो इसे हेट्रोकैरियोटिक अवस्था कहते हैं, विषम केंद्रकीय अवस्था कहते हैं. मतलब जब एस्परजिलस नामक फंगस के कवक तंतुओं में, कवक तंतुओं की एक कोशिका में, एक ही कोशिका में दो भिन्न प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, तो इस अवस्था को हेट्रोकैरियोटिक विषम केंद्रकीय अवस्था कहते हैं. और साइटोप्लाज्म में तेल बूंदों के रूप में भोजन संचित होता है.
तो भोजन साइटोप्लाज्म में मतलब कोशिका द्रव्य में तेल बूंदों के रूप में भोजन संचित होता है। तो एस्परजिलस की विभिन्न जातियों के कोनिडिया व कोनिडियम धरों कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर्स में वर्णक उपस्थित होते हैं। बेटा एस्परजिलस की जितनी भी जातियां हैं उसमें जो कोनिडिया होते हैं और कोनिडियोफोर्स होते हैं उनमें वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो निभे को कॉलोनी को नीला, हरा या भूरा काला रंग प्रदान करते हैं तथा निभे का रंग जाति विशेष का विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन तो आज नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी ये देखो इसकी स्लाइड है, मैं बता रही हूँ आपको। कोनिडिया निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं, तो ये है आप देख रहे हो, ये तो है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर को हिंदी में क्या कहेंगे? कोनिडियम धर। और कोनिडियम धर का ऊपरी सिरा फूला हुआ है तो इसको कहेंगे वेसिकल आशय। अब ये क्या दिखाएं? स्टेरिगमेटा जो कि अंगुली नुमा संरचनाएं हैं, और जैसे कि इंग्लिश मीडियम में भी दिखाई दी स्लाइड, तो देखना बेटा इस वेसिकल के ऊपर पहले तो प्राथमिक स्टेरिगमेटा डेवलप हो रहे हैं, प्राइमरी स्टेरिगमेटा, ठीक है, और उसके ऊपर प्राइमरी स्टेरिगमेटा डेवलप हो रहे हैं, और इसके ऊपर क्या है बेटा? प्राइमरी स्टेरिगमेटा के ऊपर ये देख रहे हो आप सेकेंडरी द्वितीयक स्टेरिगमेटा, क्योंकि फ्लास्क के आकार की अंगुली नुमा संरचना है, और इस सेकेंडरी स्टेरिगमेटा के ऊपर कोनिडिया लग रहे हैं, कोनिडिया का निर्माण हो रहा है। तो अपन किसकी बात करेंगे आज? कि केवल इतनी कि एस्परजिलस नामक कवक में जनन कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधियों से होता है। मतलब कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एस्परजिलस में कैसे होता है? तो यह कवक एस्परजिलस विखंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा कायिक जनन करता है। यदि कवक जाल किन्हीं बाह्य या आंतरिक कारणों से विखंडित हो जाए तो प्रत्येक खंड एक नए कवक जाल का निर्माण कर देता है। तो विखंडन किसे कहते हैं? कि यदि एस्परजिलस नामक कवक का कवक जाल विखंडित हो जाए तो जो प्रत्येक खंड है वो एक नए माइसीलियम, एक नए कवक जाल का निर्माण कर देता है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन एस्परजिलस में कोनिडिया नामक संरचनाओं के द्वारा होता है, और कोनिडिया विशिष्ट ऊर्ध्व वायवीय संरचनाओं कोनिडियोफोर्स के शीर्ष पर विकसित होती है। ठीक है, तो ये तो था एस्परजिलस। इंग्लिश में और बता देती हूँ मैं इसको, रिप्रोडक्शन इन एस्परजिलस। ठीक है, हाँ बेटा, ये है एस्परजिलस के बारे में बात कर रहे थे अपन। ठीक है, एस्परजिलस। तो अब देखना होमोकैरियोटिक एंड हेटेरोकैरियोटिक भी बताया था। तो अपन क्या कह सकते हैं? ऑल द न्यूक्लियाई इन द सेल्स ऑफ a hyphae are generally of the same type. When all the nuclei in the cells of the hyphae are of the same type, such hyphae are called as homokaryotic. तो homokaryotic किसे कहते हैं? When all the nuclei in the cells of a hyphae are of the same type, such hyphae are called as homokaryotic. And sometimes the hyphae of two or more strains anastomose, resulting in hyphae in which the cells may have genetically different nuclei of more than one strain. Such hyphae are called as heterokaryotic. तो heterokaryotic में सिंपल क्या याद रखना है कि when the cells have genetically different nuclei of more than one strain, such hyphae are called as heterokaryotic hyphae. Now, how the reproduction takes place in Aspergillus? So, Aspergillus has all the three types of reproduction: vegetative, asexual, and sexual.
means the Aspergillus fungus reproduces vegetatively and by asexual reproduction and sexually. So how the vegetative reproduction occurs in Aspergillus? So the fungus Aspergillus generally reproduces by fragmentation. So the fungus Aspergillus reproduces by fragmentation, and in fragmentation the mycelium gets divided into smaller parts due to some external or internal factors, and each fragment forms new mycelium and behaves as new thallus. तो the fungus Aspergillus कैसे जनन करती है? It reproduces by fragmentation. And what is fragmentation? In fragmentation, the mycelium gets divided into smaller parts due to some external or internal factors, and each fragment forms new mycelium and behaves as a new thallus. And now, how the asexual reproduction occurs in Aspergillus? So, asexual reproduction occurs by conidia. Asexual reproduction in Aspergillus occurs by innumerable conidia, and these conidia are produced on special branches called as the conidiophores. These are produced on special branches called as conidiophores. See, this is the conidiophore, and on this conidiophore, the conidia are produced in Aspergillus. हाँ बेटा, बताओ बेटा, 10:08 हो गए, किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन है ना, तो पूछ लो. अब नेक्स्ट क्लास में जो आपकी 14 को क्लास नहीं होगी, 15 जनवरी को भी क्लास नहीं है, अब अपन मिलेंगे 17 जनवरी को, 17th of जनवरी को आपकी क्लासेस होंगी. तो उस समय अपन एस्परजिलस करेंगे, उस समय इसका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन लेंगे. अब बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? 10:08 हुए हैं. हाँ, एनी क्वेश्चन? खुशी आ गई, आरती चौधरी, रोशन, दीपिका, कामाक्षी, रवीना चौधरी, कृष्णा भगत, कोमल चौधरी, मीनाक्षी, ज्योति वर्मा, कनिका जैन, मनीषा चौधरी, अंजलि मीना, मनीषा रेगर, निशा बागड़ी, मुस्कान, रोशन चौधरी, आरती चौधरी, हाँ खुशी मीना, हाँ आरती चौधरी. कोई क्वेश्चन है? कामाक्षी, दीपिका, रवीना चौधरी. बेटा 10:09 हो रहे हैं, तो अब मीटिंग एंड कर दे. फिर मीटिंग एंड कर दे, कुछ नहीं पूछना तो 10:09 हो रहे हैं, है ना.